करेंगे. What is important that you must prepare all the ratings that are being assigned to you. जी कोई क्वेश्चन? No, sir. ओके सो अब हम चलते हैं फर्दर इन टॉपिक्स की तरफ. If you remember, I last time I told you that we will discuss in details this theory. हम इसके बेसिक प्रिंसिपल्स, इसका ओरिजिन और सिमिलरली इसका डाउनफॉल, इसका राइज, इस पे जो क्रिटिसिज्म हुई है, इसका जो डाउनफॉल हुआ है वो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, we will try to go through that so that we have a clear idea, a complete, at least as possible, as much as possible picture of this theory. Acha. Now again, so far I told you simply this is the opinion of perhaps the oldest opinion. ये कोई नया ओपिनियन भी नहीं है, ये नया व्यू भी नहीं है. It is one of the oldest view about law, that how the law ought to be. ठीक है ना, जब भी आप लॉ बनाना चाह रहे हैं तो you have to think how should we make the law. बनाने से पहले obviously you think about that. So since ancient times, when the people had to make laws, they had to determine that how the law ought to be. So those people, the ancient people and the philosophers, they had thought, they did thought, think that the law is necessarily linked with the natural law. Our law must be in accordance with the natural law. एक ये हो गया. Or simply they say that there has always been a higher law, and our law must be according to that higher law. ये एक brief simple approach हो गई. Now the second question obviously that would come in your mind, it would be that how we gonna know or how we gonna determine and identify कि ये नेचुरल लॉ कहाँ है. ठीक है, मैंने अपना लॉ जो बनाना है वो नेचुरल लॉ के मुताबिक होना चाहिए. व्हाट इज नेचुरल लॉ? द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें एटलीस्ट ब्रॉडली देयर आर टू व्यूज in this theory, within that theory. It means that all the people who adhere to that natural law theory, they believe that there are certain higher higher moral principles, and our law according to these higher moral principle. Fine हो गया. Now what are these higher moral principle? इसमें थोड़ा सा again थोड़ा सा difference है, थोड़ा सा different opinion है. Anciently it had a religious approach, it had its origin or linkage with the religion. And they believe, some people, mostly people from the national law theory itself, they believe that the guidelines, the basic principles given by the religion, these are basically the higher laws, the primary laws. And our law must be according to these principles and guidelines given by different religions. Obviously, it could be the prophet of his time, or it could be some of the scriptures that have been revealed to that prophet, alayhi salatu wasalam. So what does religion say about universe and mankind? ये हमें कुछ एज ए मुस्लिम हमें अंदाज़ा है कि एटलीस्ट जो यूनिवर्स है उसके अंदर जो ह्यूमैनिटी भी है, they are created and are being governed by some deity, and उस deity ने या उस सुपर बीइंग ने कुछ प्रिंसिपल ले डाउन किए हैं जो कि उसकी तमाम क्रिएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो एनिमेट हैं या चाहे इन एनिमेट हैं. ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम भी है, ये वही बिलीफ सिस्टम है. यहाँ पे उसी की बात हो रही है दैट एवरीथिंग, every part and parcel of the universe has been created by God, or it could be according to some religion, it could be other than God, it could be any other deity या जो भी इसके pronunciation है, and that all human
that whole universe and the whole human being and all the creature of in that universe, they are also within the control of that deity or within the control of God. ये उनका approach है. अब the God has created that universe, so has created certain rules and principles. और ह्यूमन बीइंग को उन रूल्स एंड प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, उनके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी होगी, उन प्रिंसिपल को अदर करना होगा. हमारे यहाँ अगेन इट्स वेरी सिंपल दैट कुरान इज revealed book that is the primary and foremost important guidance for all the Muslims. So all the laws that we make it according to the guideline that has been given by Quran and Sunnah as well. ठीक है. So ये यहाँ तक बड़ा सिंपल हो गया कि जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है कि ये जो नेचुरल जो हम हायर लॉ की बात कर रहे हैं बेसिकली दीज आर द स्क्रिप्चर्स सिंपल. और प्रॉफिट की जो सुनना है जो वहाँ से गाइडलाइंस आपको मिलते हैं बेसिकली दीज आर हायर मॉरल लॉज. मैन मेड लॉ को इस हायर मॉरल लॉ से कंप्लाई करना चाहिए, ये थ्योरी है बेसिकली. ठीक है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली मज़ीद डिबेट्स होती हैं, वो हम लेटर ऑन देखते हैं. हाउ पीपल केम टू नो अबाउट दीज प्रिंसिपल्स, तो रिलीजियस अप्रोच में तो बड़ा सिंपल है. all those people who believe in the prophethoodness of the different prophet, so they know that the revolution होती है prophets पे, और वो जो scriptures की form में आती हैं that becomes ultimately guidance for the human beings या जो भी उनके faith followers होते हैं. So do these scriptures provide some standard principle morals? Do you think that all the scriptures that have been revealed so far by the religions, do they provide some sort of guidelines and some sort of standard for human conduct? What do you think about that? 026. 026 जाग रहे हैं? 027. 027. 028. अच्छा, मुझे किसी ने म्यूट कर दिया था, तो आप यू पीपल didn't tell me. I have been delivering the lecture. See here. नो पाँच सर, एक मिनट पहले सर आपकी आवाज़ आ रही थी बिल्कुल अभी रिसेंटली हुआ थोड़ी देर पहले. चले. आई डोंट नो कि किसने किया था, वो है अंदाज़ा? भाई एरर हुआ है या आई मीन सर यहाँ पर पता नहीं. नहीं सर, इसमें नहीं पता चलता सर किसने किया है एक दूसरे को. सर ये इसमें दूसरी क्लासेस में तो सर रिमूव भी कर देते हैं एक दूसरे को क्लासेस में से. हाँ हाँ बस ठीक है, आई नो दैट. लेकिन अभी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने वो ऑप्शन दिया हुआ था, तो चलें कभी पता चल जाएगा, देख लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे. तो वो अब जो रेलिवेंट टीचर है उनको ज़रा गाइड कर दिया करें ना कि ऑप्शंस में जाके सी आर ये जो उसामा है, आप इंफॉर्म कर दें ऑल द टीचर्स को कि ऑप्शन में जाके ये लुक एट दैट सर ये मुझे ऑप्शन. काइंडली ऑप्शन दिखा दें किधर आती है. ये इट कुड बी ईदर हेयर मीटिंग ऑप्शन. ठीक है, जी जी सर. यहाँ पे फिर मीटिंग ऑप्शन में ये जो हु कैन प्रेजेंट है, सही सर. ठीक है, यहाँ पे ओनली मी होना चाहिए.
और इफ़ यू आर कंट्रोलिंग दैट, सीआर कंट्रोल कर रहा है तो वो ओनली मी होना चाहिए. इफ़ यू क्लिक ऑन एवरीवन तो देन जी एवरीवन सर। कैन डू द चेंजेस. ठीक है. सो ओके इट सर। ओके ईदर हेयर और इट कुड बी ईदर हेयर. ये पार्टिसिपेंट पे जो तीन वो हैं, यहाँ मैनेज परमिशंस का ऑप्शन है. तो सही यहाँ पे सर। भी क्लिक करके इट विल टेक यू टू द वेबसाइट. वहाँ पे फिर अगेन आपने हु कैन प्रेजेंट को ओनली मी कर देना है. ओके सर। ठीक है. और ज़रा पता भी करेंगे ये म्यूट किया किसने, उसको ज़रा पर्सनली डील करें. ओके फाइन सर। हाँ, कोई दो चार हाथ कर ले होंगे तो चले. यस सर। Or there is no worries. In fact, even when I am in the control of all these things, ठीक है, so आपको control देने की ज़रूरत नहीं है. For example, now if you see, I will click on any of the students, I being the controller. So if I want that Mr. 52 should present or he can make some changes, so I will just click on 52. I will make him the presenter. So then now you can also present your topic. You can do some changes, and the rest of the people they are not authorized. ठीक है. तो ओके सर। ये भी आई मीन ज़रूरी नहीं है कि अगर टीचर ने प्रेजेंटेशन करनी है तो सब कोई वो लिबर्टी दे दे, उसके बगैर भी चल जी जाता सर है. बिल्कुल। ठीक. ये तमाम ठीक सर। टीचर्स आई मीन जो थोड़ा सा जिनको प्रॉब्लम है तो बता दें. ओके सर मैं बता दूंगा। चले. तो आई वॉज आस्किंग फ्रॉम 5025 in fact. Is he around? जी सर मैं हूँ, मैं शुभ हूँ। G 25. I was asking कि do you think that these scriptures, the revealed scriptures, they they provide certain standards or guidelines for human behavior, or they are just about the relationship of human being and the God? नहीं सर, ये तो हमारा ईमान भी है कि ये सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जितनी भी किताबें अल्लाह ताला ने जितने भी अम्बिया किराम पर उतारी हैं, चाहे वो तौरात हो, अंजील हो, कुरान मजीद हो या ज़बूर हो. Yes. So for us, it's comparatively easier to understand. Alhamdulillah, we have studied Quran. या कुछ इस्लामियात में भी हम ये हमारा आइडिया क्लियर होता है that many provisions of the Quran they are very much straightforward and they are directly regulating our behavior vis-a-vis other human beings. ठीक है. बहुत सारे ज़कात है, रोज़ा है, उसके इनडायरेक्ट हैं. मे बी मैंने आपको अभी तक उसके बारे में नहीं बताया, बट आई विल टेल यू वन डे इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी क्लास में. ये जो इवन योर डायरेक्ट जो ड्यूटीज टुवर्ड्स गॉड हैं, दे आर आल्सो लिंक्ड विद द ड्यूटीज टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स. ठीक है. ये कुरान, ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये भी डायरेक्टली अगर ना भी कहें तो द इनडायरेक्टली दे आर लिंक्ड विद द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बिहेवियर. सोशल सोसाइटी से ये लिंक कर रहे हैं, बड़े ऑब्वियस हैं. कभी बात करेंगे इंशाल्लाह इस पे. अच्छा. सो ऑल सोशल अरेंजमेंट्स इन सोसाइटी इंक्लूडिंग ह्यूमन मस्ट कन्फर्म टू दीज हायर लॉज और प्रिंसिपल. आई थिंक वी ऑल नो दैट नो लॉ शुड बी अगेंस्ट कुरान एंड सुन्ना. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही है. तो हमारा कुरान एंड सुन्ना में ये प्रोवाइड कर दिया गया है और कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या मर्डर के क्या पनिशमेंट है, या डिफरेंट वो मेन ऑफेंसेस हैं हद के जो ज़ुमरे में आते हैं उनको किस तरह डील करना है, कज़फ है, एट्सट्रा एट्सट्रा. और बाकी थेफ्ट है या ये मेन एरियाज कवर कर लिए गए हैं. बाकी कुरान सुन्ना में हमें मिलता है. तो हमारे लिए वो प्रिंसिपल्स इसी तरह दूसरे रिलीजन में उनके जो स्क्रिप्चर्स में ले डाउन कर लिए गए हैं, दोज आर द हायर लॉज, और ह्यूमन मेड लॉज शुड बी इन अकॉर्डिंग टू दैट हायर लॉ. तो ये तो हो गया रिलीजियस नेचुरल लॉ थ्योरी वी कैन से.
Some people believe that natural law theory is necessarily religious. It यहाँ पे if you have to find the higher laws, you have to go to the religion और easily आपको वहाँ पे डिटेक्ट हो सकते हैं. दूसरी अप्रोच जो है वो नॉन रिलीजियस है, but at least they believe that there is some higher laws, some higher norms, which may not be necessarily in the religion or in the religious scriptures. उनका क्या view है? So this view says that humans have certain conceptions of morality which are instinctive to them and to their nature. Sometimes we say कि यार ये बंदे की नेचर ऐसी है, you might have heard of it. इसकी नेचर ऐसी है, ये गुस्सा करता है, ये रिएक्ट ज़्यादा करता है, कुछ annoying ज़्यादा होते हैं, कुछ सीरियस ज़्यादा होते हैं. Something which you say कि ये they are something in the nature of human being. इसी की extended form ये है. These people say that some values are inbuilt in all the human beings. At least when we say 90% human being में ये inbuilt है, then we must say that all the human beings. No neutral human being would say that killing another person is justified. अगर वो ऐसा कहता है तो आप उसकी रैशनैलिटी को क्वेश्चन करने लग जाएंगे. That how can you say? You can murder other human being, उसकी कुछ ग्राउंड्स हो सकती हैं, फाइन. अगेन आपने उस ग्राउंड्स को चेक करना है. तो इसी डिस्कशन में आपने उन तमाम प्रिंसिपल्स को ह्यूमन लॉ के, नेचुरल लॉ के आपने डिस्कस करना है. ठीक है, कितने आ गए हैं? चार स्टूडेंट्स हैं मेरे. अच्छा, 4 स्टूडेंट्स और 5 6. ठीक अभी है. 4 रहते हैं उन्होंने आज सबमिट कराने हैं? जी. इसामा भी आज ले आएगा, किरण भी शायद आज ले आए, बाकी को नहीं पता. तो एक साथ है और कौन है? दूसरा याद नहीं. क्या रहमान मेरी अच्छा, क्या रहमान है. ठीक है, ज़रा उन्हें मैसेज भी कर दें कि सबमिट करें. ठीक है सर. अच्छा, ठीक हो गया. सो इनकी अप्रोच ये है दैट सर्टेन वैल्यूज, सर्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी दैट इज इन बिल्ट इन ह्यूमन बींग्स, और वो जो इंस्टिंक्टिव जो वैल्यूज हैं इन बिल्ट, दे आर बेसिकली द हायर लॉज. अब इनको सेकंड क्वेश्चन इज हाउ वुड वी डिस्कवर देम. अगेन अब इस पे डिटेल में जाएंगे, but they generally believe that there are certain instinctive human nature which guides us that what is good and what is bad, what is right and what is wrong. So once you are determined that this is right and this is wrong, then when you are going to make any laws, those laws should be according to those principles of right and wrong. And उनकी गाइडेंस हमें हमारी अपनी नेचर ही हमें गाइड कर रही होती है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. ठीक है, डू यू थिंक सो? अगर आप लेट सपोज किसी एक ह्यूमन बीइंग से मिलें जो कि कभी उसने रिलीजन, ही माइट नॉट हैव हर्ड अबाउट रिलीजन, मे बी कहीं साउथ अमेरिका के किसी जंगल्स में भी कहीं अगर आप जाएं और उनसे कम्युनिटी से मिलें who might not have accepted any religion, या उनके अपने कुछ myths होती हैं मे बी, तो do you think that they would have certain sense of rights and wrong? 027. Yes, sir. ठीक है ना, तो नेचुरल है. आई मीन फॉर एग्जांपल नाउ इवन if something that has not been told to us कि ये लीगल है या इलीगल है, और फिर भी हमें अगर एक सिनेरियो दे दिया जाए, तो अगर हम न्यूट्रल हो के एक ओपिनियन लें तो हम उसमें कुछ डिटरमिन कर सकते हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. वो हमें गाइडेंस कहाँ से मिल रही होती है? ज़रूरी नहीं है कि कुरान एंड सुन्नह से गाइडेंस मिल रही हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी लॉ से हमें गाइडेंस मिल रही हो, बट समथिंग मे बी हमारा माइंड
rational, it could have been guiding us. ठीक है, तो ये दो अप्रोचेज हैं. Some believe कि religion आपका higher standard law है, and some believe that religion may not be necessarily guiding or providing those higher principles, और उसके लिए आपका जो instinctive values हैं, they gonna be the higher laws. Thus, morality is sometimes called conscience or moral principle made for proper human being. आप इसको morality भी कहते हैं, conscious भी कहते हैं, जो आपको guide कर रहा होता है, and things like that. Now, how to identify these principles? These people says that all the reasonable human beings, all the normal human beings, they have reason, consciousness, and their consciousness is gonna guide them what is right and what is wrong. At least certain principle की हद तक वो आपको गाइड कर सकते हैं. Obviously आपके जहन में ये definitely question आना चाहिए. I don't know अभी तक क्यों नहीं आया कि मेरे values, मेरा conscious मुझे एक particular angle से कुछ values बता रहा होगा. Or maybe the people in the West, they might be thinking something to be wrong, which I believe right, or I believe something right, wrong, and they could believe it to be wrong. ठीक है, ये भी हो सकता है. तो इसका आंसर हम कहीं लेटर स्टेज पे देखेंगे. So these principles makes humanity tend towards virtue. ये जो higher principles हैं, basically they are of the view that they always lead the humanity towards virtues, towards goods and good things, or they take them away from vices. Either you go or you take the secular approach, or you take the natural approach. Natural approach में तो हम being a Muslim comparatively ज़्यादा practicing है हम people, तो हमें कुछ अंदाज़ा है कि जो भी हमारे जो क्रॉनिक गाइडलाइंस हैं, ये जो क्यास का जो कॉन्सेप्ट है, क्या कहते हैं, क्यास नहीं कहते हैं, कसास, ठीक है, कि लाइफ और लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें वो इसी अल्टीमेटली कि आपकी सोसाइटी में एक डेटरेंस का वैल्यू जनरेट हो रहा होता है और क्राइम्स अल्टीमेटली कम हो रहे होते हैं. ठीक है, तो अल्टीमेट जो वाइसेस हैं वो कम हो रहे होते हैं और जो गुड है वो प्रमोट हो रही होती है. दिस इज़ दियर बिलीफ, बोथ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी और जो सेकुलर हैं ये भी यही कहते हैं कि ये जो इंस्टिंक्टिव वैल्यू जो है ये बेसिक हेल्प यू लीड टूवर्ड्स द गुड्स, टूवर्ड्स द वर्च्यू एंड द राइट human conduct and life, and they take you away from the vices or the bad conduct of way. These principles should be the basis of lawmaking and constitute higher law to which all human law must strive. As I told you, ये जो instinctive build nature है और उसकी जो guidance है, that gonna be the higher laws. Is this clear so far या कोई question है इसके बारे में? क्वेश्चन है? सोए ना सर? No, sir. General methodology of natural law theory कर लेता हूँ. सिंपल इसमें ये है कि जो भी अल्टीमेट पर्पस जो इस वर्ल्ड या यूनिवर्स का है, दैट इज टू गो टूवर्ड्स परफेक्शन और टू गो टूवर्ड्स बेटर ह्यूमन एग्जिस्टेंस. वो कहते हैं कि ये जो नेचुरल लॉ जो है एक वन वे है टू लीड टूवर्ड्स दोज स्टेट ऑफ परफेक्शन और टूवर्ड्स गुड ह्यूमन सोसाइटी. तो ये जो नेचुरल प्रिंसिपल हैं अल्टीमेटली दे हेल्प अस टू लीड द सोसाइटी टूवर्ड्स द स्टेट ऑफ परफेक्शन और टूवर्ड द स्टेट ऑफ बेटर एग्जिस्टेंस आप कह लें या बेस्ट एग्जिस्टेंस कह लें. और हाउ कैन वी एंश्योर टू मेक लॉ परफेक्ट? ठीक हो गया. तो जनरली सिंपल ये है. Now, or to be an important question of morality, how to identify determine this principle, ये तकरीबन हमने डिस्कस कर लिया है. Now, the second question ये था, अब ये वो जिसका मैं अभी आपसे कह रहा था
something now you can being in the era of globalization, you are able to see that certain values or certain principles are very good, are very much adhered in the West, and they are not as such adhered in the East. और इसी तरह इन रिलीजियस और नॉन रिलीजियस सोसाइटीज में कुछ प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, गुड समझा जाता है, कुछ को गुड नहीं समझा जाता। फॉर एग्जांपल, ये रिसेंटली जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट फ्रांस में हो रहे थे, सो जनरली द पीपल इन फ्रांस दे डिडंट resist that caricatures and they didn't take it something wrong unless they realize that there could be some harm coming from that reaction. Then they have to somehow, उनके प्रेसिडेंट ने कुछ कहा कि हमारा मकसद ये नहीं था, वी बिलीव इन द लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो उससे उसको कंटेक्चुअलाइज करके उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जस्टिफाई नहीं कर रहा, it is basically the whole society of France is being represented here. They go to that extent in terms of their freedom of expression, while no religion, no religious country can permit to have that caricature of any prophet, because it gonna hurt the sentiments of the faith followers of that religion. तो हमारे यहाँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत से और कंट्रीज में भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट वहाँ पे वो एक्सेप्टेबल है। तो हाउ वुड वी डिटरमिन why didn't they? The question is, why didn't those people, the French people, have those instinctive value which we have? ठीक है, क्वेश्चन तो ये हो सकता है ना, why do human being on the same universe differ in terms of their inner values? What do you see about that? आप अपना व्यू दें इसमें। साइलेंस। सर जी। सर हमारा बेसिकली नजरिया वर्ल्ड को देखने का और है और उनका और है सर। हमारा पर इन्फ्लुएंस रिलीजन का ज्यादा, उन पर पूरा का पूरा सेकुलरिज्म और इस तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं। और बेसिकली एजुकेशन और आप तरबियत ही कह सकते हैं जो हमारी उनसे डिफरेंस है, जिसकी वजह से वो किसी और तरीके से देखते हैं, वो हम किसी और तरीके से देखते हैं हमारे वैल्यूज को। Yes, it means then should we say that the national theory differs from one country to another? क्या फिर ऐसा है?
अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि ऑब्वियसली वैल्यूज सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करते हैं, एंड दैट्स वेरी ऑब्वियस, हम देख रहे हैं। लेकिन दीज पीपल से, द नेशनल थ्योरी से, that regarding certain values, regarding certain basic problems, all the human being, they don't, or the consciousness of all the human beings, it doesn't differ. They are the same. They are universal. और वो कहते हैं those are these 5 to 6 things जिनमें first of all is life. लाइफ के बारे में किसी का डिफरेंट ओपिनियन नहीं है। नो वन शुड बी किल्ड अनजस्टिफाइड। कोई चाहे ईरान में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे किसी जंगल में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, बैक इन एंटार्क्टिका में भी अगर कोई आइसलैंड में हो, they would recognize this principle that yes, no one should be unnecessarily killed. इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, कोई ना रिलीजियस की यहाँ पे डिफरेंस है और नॉन रिलीजियस का, सेकुलर नॉन सेकुलर कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली द राइट टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन, जनरेशन, to have their generation, they say that this is also some right that are existing in the human nature. He or she wants to have his next generation, which is to exist for the next life to come. तो सेकंड प्रिंसिपल, इसमें वो कहते हैं कि कोई डिफर नहीं करता है। इस पे डिबेट मजीद हो सकती है, लेकिन जनरली दे बिलीव, इसलिए all the people even in the west who believe in the natural law theory, they are against that ये जो बेबी किलिंग होती है, या इसको क्या कहते हैं, इसको जो वर्ड होता है जो भी, मॉरल, वो उसके अगेंस्ट है, जो कि वेस्ट में कॉमन भी है। लेकिन जो नेचुरल थ्योरी के लोग हैं वो इसको रेजिस्ट करते हैं। although they are in the west, still they resist it because they say that this is against the natural law values, natural law principle. Similarly, education, they think that everyone wants to be educated, he wants not to be ignorant. So that right should be recognized, should be extended to all the human beings, and it should be recognized and accepted, and is accepted by the by all. लॉ एंड ऑर्डर, वो कहते हैं कि एक सोसाइटी में पीस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और इस पे भी कोई डिफर नहीं कर सकता है। तमाम ह्यूमन बीइंग कहेंगे कि यस, वी नीड टू लिव इन अ सर्टेन, अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर. We must have certain rules to regulate our conduct vis-a-vis other person, vis-a-vis certain situations, vis-a-vis state and the individuals, etc. etc. उसके लिए कुछ हमारे पास सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होना चाहिए ताकि हम एक डिसिप्लिन लाइफ। सिमिलरली वर्शिपिंग गॉड, इस पे भी एवरीवन, वो कहते हैं एवरीवन बिलीव्स इन दैट, every human being believes that he should have the liberty to worship the God he likes. यहाँ पे आप सेकुलर को अगर ले आए तो सेकुलरिज्म को भी आप एक वर्शिप, एक रिलीजन कह सकते हैं। दे बिलीव इन सर्टेन प्रिंसिपल्स, वो उनके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स वही हैं, दिस इज व्हाट दे फॉलो। ठीक है, तो इस हद तक वो कहते हैं कि सर्टेन, वी कैन से एवरी ह्यूमन बीइंग मे बिलीव इन सम, वो क्या कहते हैं उसे, ट्रांसडेंटल कहें या कुछ हायर्स वैल्यूज में, या कुछ हायर्स थिंकिंग में बिलीव करता है, तो ही मस्ट बी गिवन दैट लिबर्टी। वो कहते हैं एटलीस्ट टू दीज एक्सटेंट ऑल ह्यूमन बीइंग दे डोंट डिफर। और नेचुरल लॉ इन तमाम वैल्यूज़ को, इन तमाम इनसे रिलेटेड जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको तमाम ह्यूमन बीइंग यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो सेकुलर हों चाहे वो रिलीजियस हों।
बाकियों में डिफर कर सकते हैं। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नो वेयर हेयर, तो उसमें आप डिफर कर रहे हैं, यहाँ डिफर कर रहे हैं, वहाँ डिफर कर रहे हैं। इसी तरह तो ऑल दोज पीपल जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एक्सीड कर जाते हैं, वो डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं है तो वो दैट कुड बी कंटेक्चुअलाइज्ड विद द सोसाइटी, विद द सिविलाइजेशन यू आर इन, तो वो उसके मुताबिक हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो यहाँ पे है, इट इज़ नॉट सो इन द वेस्ट, वहाँ ऑल टुगेदर डिफरेंट है। पेरेंट्स और चिल्ड्रन का जो रिलेशनशिप यहाँ पे है, दैट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट इन द वेस्ट। वो तो what I have seen in France, maybe I might have told you previously, they don't even call their parents for months. कोई bondage नहीं रही है, because uh, the parents after 17 years they don't feel to continue taking care of their children. They say that now you are young enough, you are old enough to take care of yourself, go earn and do your as you like. Majority people are doing like this in the West, while हमारे यहाँ different है। हमारे यहाँ you know it, अपने आप को मुश्किल में डाल के योर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ यू। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि अपने पेरेंट्स का बहुत रिस्पेक्ट किया करें। यू आर ब्लेस्ड कि सो फार हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। जो कुछ भी आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उस पर उनके भी थैंक्सफुल रहा करें, अपने खुदा का भी थैंक्सफुल रहा करें, जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश किया करें। So this is all about anything in support of this purpose is good and morally correct, and anything opposite is bad. Simple. अगर आप कोई ऐसा लॉ बनाएंगे जो which is anti to these principles or to these objectives, वो गुड नहीं है, और जो इनके अकॉर्डिंग से ओनली दैट इज़ गुड, ठीक है। मज़ीद इनकी डिटेल्स हम देख लेंगे, बट दैट कन्फ्यूजन शुड बी क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक के जो वैल्यूज़ हैं, जिनको हम इंस्टिंक्टिव भी कहते हैं, they could differ from society to society, but there are ultimately certain values जो कि अभी I just described it before you, they are to be found universally. अच्छा जी, अब कुरान की आयत पढ़ लेते हैं। I forgot to read them in the start, बड़ी ही इम्पोर्टेंट है जी ये आयत, बड़ी प्रैक्टिकल है, और बहुत सारी आपकी जो रिलीजन के बारे में कुछ कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है ये आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। आपने सुना भी होगा कि अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक़्त तक तब्दील नहीं करता है जब तक कि वो ख़ुद कौम अपने आप को तब्दील करने का ना सोचे। सो इन अदर वर्ड्स, वेरी सिंपल, इसमें फर्दर इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। if we people want to be technologically advanced, if we people want to be recognized internationally, तो हमें क्या करना चाहिए, और उसके लिए हमें जो चेंजेस लाने चाहिए वो हमें करने होंगे। ओनली देन अल्लाह की नुसरत शामिल हाल रहेगी। हाथ पे हाथ धरे बैठने से अल्लाह सपोर्ट नहीं करता है। अब इसमें अल्लाह हैज़ वर्ड, it has been mentioned the word nation which includes Muslims, ठीक है। हमारा जो रिलायंस है ना अल्लाह पे, जो तवक्कल का जो वो है, वो हमें नॉन प्रैक्टिकल बनाती है, विच इज़ नॉट द केस। इन फैक्ट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू पुट योर मैक्सिमम, और फिर रिजल्ट्स आपने अल्लाह पे रखने हैं। ये नहीं है कि सब कुछ आपने अल्लाह पे रख देना है कि अल्लाह बस बेहतर करेगा। आपने अपनी एफर्ट्स भी नेसेसरली पुट इन करनी होती हैं। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिही सूअन फला मरद्द लहू। हाँ, फिर ये है कि और जब खुदा किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है तो फिर वो फिर नहीं सकती है। खुदा
अपनी उसमें अल्टीमेट सुप्रीम पावर है। अगर वो किसी की तरफ बुराई भेजना चाहे तो फिर वो फिर नहीं सकती है। आई बिलीव वो बुराई बगैर रीज़न के नहीं आती। अल्लाह जो है वो अदल के साथ डील कर रहा होता है। सो उसकी अदल ने अगर ये डिसाइड कर लिया है कि फुरानी कौम के की तरफ अब बुराई आनी चाहिए, तो अब आप जो कुछ भी कर लें तो वो आएगी। आई मीन हमारे आगे एटलीस्ट ये वायरस ने तो बड़ा क्लियर कर दिया है कि द सुपर मोस्ट पावर वायरस के आगे एक छोटा सा वाइबर है विच विच कॉन्ट बी सीन। अभी तक उसको उसकी सॉवरेनिटी चैलेंज हो चुकी है। एटलीस्ट ट्रम्प प्लस वायरस ने चाइना को उनके बिल्कुल अपोजिट खड़ा कर दिया है। नाउ दे कैन सी दे आर द नाउ टू एटलीस्ट सुपर पावर्स हो चुके हैं। बल्कि कुछ एनालिसिस तो ये है कि चाइना जो है वो बहुत सारे एरियाज में इकोनॉमिकली एटलीस्ट इट इज़ नाउ एक्सीडिंग यूएस। ठीक है, बट वायरस के आगे वो हो गए थे। सो गॉड नोज बेटर, लेकिन ये लगता यही है। सेकंड आया वल्लज़ीना साबिरू इब्तिगा वजहु रब्बिहिम व आकिमुस्सलात व अनफिकू बिमा रज़क़नाहुम सिर्रन व इलानिया व यद्रऊन बिल हसनाति सय्यात उलाइका लहुम अक़बुद्दार। और जो लोग अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए सब्र करते हैं, अल्लज़ीना साबिरू इब्तिगा वजह रब्बिहिम, अल्लाह के लिए सब्र करें, अल्लाह के लिए। वाकिमुस्सलात, और नमाज पढ़ते हैं और माल से खर्च करते हैं, सिरों व एलानिया, चाहे छुप के चाहे ऐलान के तौर पर ओपनली। वयद्रऊना बिलहसनात सय्यात, और नेकी से बुराई को दूर करते रहते हैं। अपने अच्छे डीड से में भी अपने बुरे डीड्स को ओवरकम करते रहते हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग का जो मुस्लिम का जो जिहाद है, वो मेन जिहाद ये है कि ही विल बी स्ट्रगलिंग टू डू गुड्स एंड गुड्स एंड गुड्स, और अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उसको कम और कम करता रहेगा। इस जहद में, इस स्ट्रगल में रहना जिहाद अव्वल है, जिहाद बेहतर है। दूसरा जिहाद से ये बड़ा जिहाद है, अपने नफ्स पे, अपनी बुराइयों पे कंट्रोल करना। अभी हमारा अलमिया है, आपने देखा होगा कि जो दूसरा जिहाद है वो किस तरह अब डोमिनेट कर रहा है हमारे यहाँ, और ये जो अव्वल जिहाद है ये कहीं नज़र नहीं आता है। वी नीड टू थिंक अबाउट दैट, वी नीड टू स्प्रेड दैट। आप वसल्लम की तो हदीस बड़ी क्लियर है इस बारे में कि जो प्राइमरी जिहाद है वो कौन सा है, वो हमारे नफ्स से स्टार्ट होना है। हमारे नफ्स पे तो हमने इस्लाम को लागू नहीं करना, लेकिन दूसरों पे जाके हमने लागू करना है उसे, बिकॉज दैट इज़ ईजी टू डू। अपने पे अमल करना, उसका इतलाक़ करना बड़ा मुश्किल है। और खुदा ओके एंड उलाइका लहुम अक़बुद्दार, और जिनके लिए और इन्हीं लोगों के लिए अच्छा है, अच्छा घर है, आखिरत का घर अच्छा है। और एडिशनली मेरी अच्छी अच्छी बातों पे से ये तासर ना लिया करें कि मैं ख़ुद भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, लाइक ह्यूमन बीइंग्स बहुत प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट होते हैं ह्यूमन बीइंग में, और मेरे में भी हैं। तो और आप कोशिश किया करें, दुआ किया करें मेरे लिए भी, अपने लिए भी, कि अल्लाह हमें कुछ बेहतर कर ले, हम कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। बस ये स्ट्रगल करते रहा करें। और हमें ये रियलाइज, बट ये पर्पज़ ये होता है कि एटलीस्ट हम थोड़ा रियलाइज़ करें। मैंने कुछ अच्छी चीज़ पढ़ी, मैंने जो उससे अंडरस्टैंडिंग की, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर कर लूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% इस पे अमल कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए। एटलीस्ट आई नो, तो मैं आई मे टेंड टू टुवर्ड्स डूइंग दैट। अगर मुझे पता भी ना हो, अगर मुझे बार बार उसका तकरार ना हो, तो फिर शायद मेरा तवज्जो ना जाए उसकी तरफ। तो अगर मैं इफ़ आई एम इन नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स, तो मे बी समटाइम्स आई वुड बी ट्राइंग टू एक्ट। तो एक डिस्क्लेमर मेरी तरफ से मैं हमेशा देता हूँ कि ये अच्छी बातें आप तक कम्युनिकेट करना होता है, बाकी इंसान को अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। और हम भी, एवरी वन इज़ ह्यूमन बीइंग, हमें भी करना चाहिए, हमारे में प्रॉब्लम है। लेकिन एक दूसरे के लिए जब हम दुआ करेंगे तो शायद पॉसिबल है कि, और फिर हम स्ट्रगल भी करें तो मे बी पॉसिबल है हम कुछ अच्छे ह्यूमन बीइंग्स बन जाए।
या मुस्लिम बन जाए एडिशनली। तो विद दिस हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर लेट्स टेक 11 मिनट ब्रेक, फिर हम इंशाल्लाह क्लास को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। सर टाइम जल्दी अटेंडेंस लगा दे अगर उसके सॉरी, बाद सर यहाँ पर जुमा थोड़ी जल्दी होती है सर अटेंडेंस लगा दे। यार साथ कोई और मस्जिद भी होगी, सब आपके यहाँ सारी मस्जिद में 12:45 पढ़ा जाता है। सर 1 बजे है लेकिन तैयारी चल रही है। अच्छा तो भैया 10 मिनट में आप तैयारी कर लेना, 10-15 मिनट। सी यू। ठीक है सर।
अच्छा जी। अच्छा जी। इनको मैं अभी पोस्टपोन करता हूँ इस स्लाइड को, ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा इसके बारे में। जॉन फिनिस जो है ये बड़े सेलिब्रेटेड नेचुरल लॉ का थ्योरिस्ट है, अभी लाइव। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो अब ज़रा ब्रीफली हम देख लेते हैं बैक हिस्ट्री से कि इस एवोल्यूशन किस तरह हुआ इस थ्योरी का, और एंशियंट टाइम्स में इस थ्योरी को हाउ इट वाज टेकन, हाउ इट वाज एक्सेप्टेड, और ग्रेजुअली फिर जब इसका कोई डिक्लाइन आया तो हम उस एरा को भी देखेंगे, और इसकी करंट क्या सिचुएशन है कंटेम्प्रेरी, वेदर इट इज़ रियली ट्रू दिस थ्योरी और नॉट, हम इसको भी देख लेंगे। अच्छा, अर्लीस्ट स्टेजेस, as we know, if you have little knowledge about history, so you might be knowing कि historically religion और secularism का कोई खास difference नहीं होता था. So every human conduct that was supposed to be regulated through the guidance of God or through some scriptures or some divine people, उनके ज़रिए से, it could be myth or it could be religion. फॉर एग्जाम्पल ग्रीक में आपको मिथोलॉजी मिलती है जो कि दैट वाज नॉट नेसेसरी रिलीजन, ठीक है, उस पर थोड़ा सा डिफरेंस है मेरे ख्याल में ओपिनियन का। ऑब्वियसली वो रिलीजन लगता तो नहीं है जो उनके मिथ्स के जो डिफरेंट गॉड्स हैं। द स्पिरिचुअल एंड द फिजिकल में भी कोई डिफरेंस नहीं था। सो दे सी ए लिंक बिटवीन नेचुरल वर्ल्ड ऑफ फिजिकल मैटर एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ गॉड एंड स्पिरिट। सो एंशियंट लोग जो थे दे नेसेसरली दे ऑलवेज सी कि जो ह्यूमन वर्ड है और वो जो स्पिरिचुअल वर्ड है इसमें देर इज ऑलवेज अ नेसेसरीली लिंक है, ये दे आर नॉट ऑल टुगेदर डिफरेंट, दे आर समहाउ लिंक्ड और दे गो इन cooperation with each other, in coordination with each other, the nature and the human, the nature and the world, they are in coordination with each other. So a spiritual entity associated with the working of almost every aspect of the physical world, हमारा ये belief है और since long है, हम religious उसको follow कर रहे हैं कि since the God has created this world or universe since time immemorial, and that is being, he is guiding the all the universe etc. हम जो believe रखते हैं एंशियंट से, बल्कि हमारा तो फर्स्ट जो अल्लाह की क्रिएशन आदम अलैहिस्सलाम थे, ह्यूमन बीइंग थे, उनकी सिंस देन हमारे यहाँ बिलीफ सिस्टम है दैट ही वाज आल्सो बीइंग गाइडेड बाय द गॉड, और उनके मुताबिक रेवलेशन के मुताबिक वो उनका बिहेवियर कंट्रोल किया जा रहा था या किया जाता था। दैट इज़ वाई ह्यूमन एक्शन में और वर्ड में और स्पिरिट में या गॉडली डिवाइन इंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं था, और हिस्टोरिकली ये ऐसा ही रहा। Hence a higher power in control of human existence, as I told you, and higher rules discoverable with efforts. If discovered, then plan of the God may be known. तो कहते हैं जो यूनिवर्स की जो हायर प्लान है, द बिगर प्लान ऑफ द लाइफ, वो अल्लाह ताला ने या जो एंटिटी डीटी इन कंट्रोल है उसने बता दिया हुआ है। What we need to do, we have to discover it, but with our efforts. So once we are done with that, we can be certain about the plans of the gods. In harsh and capricious word, these divine plans leading to an ultimate state of goodness, where life easier for all members. This can be a state of perfection. I told you previously कि harsh times में जो ये गाइडेंस फ्रॉम गॉड है ये आपको बेहतर स्टेट ऑफ प्रोफेशन की तरफ ले जाती है और बेहतरी आती है एक सोसाइटी में। रिलीजियस ओरिजिन आपको सबको पता है, और तमाम क्रिश्चियंस जो हैं दे ऑल बिलीव्ड इन द क्रिएशन ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
और उनको जिस तरह स्क्रिप्चर के ज़रिए गाइडेंस की गई थी। फॉर एग्जांपल कुरान एंड सुन्ना दोनों इंक्लूडेड है उसमें। अ मुस्लिम इज़ वन फ्रॉम हुज टंग एंड हैंड अदर मुस्लिम्स आर सेफ। और दिस इज़ अ प्रिंसिपल, दिस इज़ द हदीस ऑफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुस्लिम की आइडेंटिटी इस चीज़ से है कि दूसरे मुस्लिम की इज्जत और दूसरे मुस्लिम उससे सेफ हैं उसकी ज़बान से और उसके हाथ से। इट्स अ वेरी बिग प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल। अब हमारा कोई लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि दूसरों को ईदर फिजिकली और थ्रू वर्ड्स उनको हर्ट कर रहा हो। ये प्रिंसिपल है, उसके मुताबिक आप लॉज बनाते जाए। Basic principles either in Quran or in Sunnah. That will be the guiding principle, and the rest you may make laws according to that. अच्छा, अब हम थोड़ा सा जाते हैं ग्रीक फिलोसफी की तरफ, जो कि आज से लेट सपोज 2300 ईयर्स बैक ये सारे प्लेटो एरिस्टोटल वगैरह जो थे, सोक्रेटिस, these आर द वेल नोन फिगर्स। उससे पहले भी फिलोसफी डेफिनेटली थी, इनसे पहले भी लोग थे। These were the well-known figures जिन्होंने फिलोसफी में रैशनलाइजेशन लाने की कोशिश की। They tended to show the purposes of the things, maybe of the universe, of the life. वो कहते हैं कि पर्पस बगैर कोई चीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, and that was a very good advancement towards the rationalization. ठीक है, तमाम they believe that everything has some reason and ration, उसको discover और understand करने की ज़रूरत है। So universe is being governed by intelligible laws and capable of being grasped through human mind. According to them, Greek philosophers कहते थे कि ये जो human being भी है, that is being governed by certain intelligible law. बड़ा intelligent है ये law जो इस universe को govern कर रहा है। And we human being, if we just apply our mind, we can discover it. It's not something very difficult task to do that. It can be easily discovered according to them. Possible to derive from the rationality of the universe some rational principles which could be utilized to govern the conduct of persons. अब ये ज़रा आप pay some attention, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में आपको थोड़ा सा you have to compare it with some other views. Generally, Greek philosophers का एक कुछ जो people थे in Greek philosophy, they said that look at the nature and the nature, if you apply your mind, you would be able to know that this nature is supporting life. It provides you with the food, it provides you with the cultivation things. If it rains and some seeds are inserted into the earth, then the foods come out. Similarly, maybe mountains में, hills में रहना, covered रहना, that supports life. Water is being provided by the nature, it supports life. तो कहते हैं nature does not have anything which is non-supportive to life. That is why life जो है, it is very important. And since nature is protecting the life, so should the human law protect the life. Yeah? They try to link the human life with the law of nature. Remember, law of nature से direct इसको link करने की कोशिश कर रहे हैं ये. Nature is life supportive, so should be the human law to be a life supportive. इसमें और भी चीज़ें को वो इस तरह एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सर्टेन इसमें फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है जो हम फर्दर ऑन लेटर ऑन देखेंगे। बट यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट ऑफ व्यू, नेचर सपोर्ट्स लाइफ, ह्यूमन लॉ मस्ट सपोर्ट लाइफ एज वेल। तो वो जो नेचर के जो लॉज हैं, दे आर नेचुरल लॉज, दे आर बेसिक लॉज, दे आर हायर लॉज।
अब remember some people say these laws of nature or something, वो कहते हैं यही natural law है, और लोग कहते हैं कि नहीं ये natural law नहीं है, वो हम later on देखते हैं इसमें जो differences हैं. अच्छा, now it's all about some of the Greek philosophers. How did they see the natural law? Socrates, being the teacher of known Greek philosopher, Aristotle का teacher था वो, तो he says, including Plato, sorry वो Plato का teacher था, he says that there are principles of morality which can be discovered through the process of reasoning and insight. If you think, if you do some insight and reasoning, you can definitely discover certain principles of morality, and that should be the natural law or the guiding for us. The law based on these principles would be the product of correct reasoning. अब इस लॉ के मुताबिक अगर आप कोई भी लॉ बनाएंगे, that will be reasonable, that will be good, that will be acceptable. प्लाटो को मैं आई स्टॉप हियर. प्लाटो को थोड़ा फर्दर डिटेल में मैं आपको डिस्कस कर लूँगा उसकी मेथड्स को, और बट बेसिकली ही आल्सो बिलीव्स in the natural law theory. He also believes that there are certain natural law principles जिसको which are very higher in their standing and importance. So with this we stop today. ठीक है, I think 36 है, वो नेक्स्ट ज़रा सा लंबा हो जाएगा. हम फिर इंशाल्लाह